مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ ڈاکٹر ایمینول طاہر آج کی خوبصورت شو بیداری کے ساتھ، اور ٹاپک چل رہا ہے کیا دولت خداوند کی طرف سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس کا ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر چکے ہیں اور بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خدام نے کی ہیں، اور اب آپ کی بھرپور فرمائش پر ہم دوسرا ایپیسوڈ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ اور خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، خدا کے کلام کے مکاشفات آپ تک پہنچائے جائیں کہ خدا دولت کے بارے میں اور آپ کے امیر ہونے کے بارے میں، آپ کے بابرکت ہونے کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ہمارے پاس سیم گیسٹ ہیں آنریبل بشپ صاحبان، اور آج میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف خود سے کروائیں۔ ہمارے ساتھ بشپ آصف جان گل صاحب، سر جی اپنا تعارف کرائیے گا پلیز۔ تھینک یو ویری مچ بھائی مانول، خدا آپ کو برکت دے۔ میں جمعہ ٹی وی کا اور ڈاکٹر ایمینول طاہر کا انٹائر ٹیم کا، ان کی فیملی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک بار پھر جو ہے اس پروگرام بیداری میں مدعو کیا تاکہ اس پروگرام کی وساطت سے خدا کا کلام آپ تک پہنچ سکے۔ میرا نام آصف جان گل ہے، اور عہدے کے اعتبار سے ایز اے بشپ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ بہار کالونی میں ہمارا مدر چرچ ہے، ریولیشن گاسپل منسٹری کا میں چیئرمین ہوں۔ اس کے علاوہ میں آر سی پی آئی بائبل کالج اینڈ سیمنری میں ایز اے ڈین اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اور سپریم کونسل آف بشپس میں ایز اے جوائنٹ سیکرٹری خدا نے اپنی خدمات کے لیے مجھے مقرر کیا ہے، اور ایکلیزیا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ایز اے فیکلٹی ممبر، اور آئی ایل آئی انٹرنیشنل لیڈرشپ انسٹیٹیوٹ میں بھی ایز اے فیکلٹی ممبر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ واہ، اور گزشتہ 24 سال سے میں خدمت میں ہوں، اور خدا نے گزشتہ 24 سالوں سے ہر دن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھے جو ہے ہمیشہ اس بات کا احساس دلایا، اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میرا خدا ہر وقت، ہر دم میرے ساتھ رہتا ہے۔ واہ، ویلکم بشپ صاحب، آپ کو بیداری شو میں ویلکم کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے بشپ آصف ای رندھاوا صاحب، اور میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا تعارف۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو بہت زیادہ بلیس کرے، آپ کی ساری ٹیم کو، جرمایا ٹیم کو جو ہے، جرمایا ٹیلی ویژن کو بہت زیادہ بلیس کریں۔ تو آپ نے تعارف تو کروا ہی دیا تھا، لیکن چلیں تھوڑا سا میں بھی اپنا تعارف کروا دیتا ہوں۔ میرا نام جو ہے بشپ آصف ای رندھاوا جان ہے، اور میں یوحنا آباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہمارا جو ہیڈ آفس ہے وہ یوحنا آباد میں ہے، اور ویسے تو خداوند مجھے جب سے میری لائف چینج ہوئی 7ویں کلاس میں، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، پڑھتا تھا، تب سے خداوند یوز کر رہے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر جب میں یوحنا آباد میں آیا تو وہاں پر منسٹری کا آغاز ہوا۔ 2010 سے جو ہے خداوند مجھے اپنی جو خدمت کے لیے ہے وہ استعمال کریں۔ آمین۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ اسکول تھا ہمارا، ابھی بھی ہے، تو اسکول کی خدمت میں 2005 سے خداوند استعمال کر رہے ہیں، اور آج بھی یوحنا آباد میں ہمارا اسکول ہے، اکیڈمی ہے، اور یوحنا آباد اسٹاپ پہ ایک بہت بڑی اکیڈمی جو ہے رایا مارٹ کے نیچے ایک بہت بڑی اکیڈمی ہے۔ واہ، تو اس کے علاوہ خداوند نے جو پاسبانی خدمت دی، اس میں مختلف گفٹ جو خداوند نے دیے وہ استعمال خداوند کر رہے۔ میں حیران تھا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کی زبان سے وہ لفظ نکل رہے تھے کہ خداوند بشپ آصف رندھاوا جان ایک بہت اچھے ایونجلسٹ ہیں۔ تو بیسک جو میری خدمت ہے وہ ایونجلسٹ کی، جو خداوند اس کو کثرت سے جو استعمال کریں۔ ہلیلویا۔ تو اس کے ساتھ پھر پاسٹر کی خدمت خداوند نے دی، پھر اپوسٹولک خدمت دی۔ اپوسٹولک خدمت میں ہم نے 31 چرچز جو ہے وہ 13 سال کے اندر جو ہے وہ پلانٹ کیے ہیں۔ واہ، پریز دی لارڈ سر، آل اوور پنجاب میں۔ ویری گڈ۔ جی، تو یعنی ایجوکیشن کے ساتھ خداوند نے چرچ پلانٹنگ کے لیے استعمال کیا، اور اس کے بعد 2021 میں خداوند نے ایک بڑا جو کام ہم سے لیا، وہ بشپ آصف کالونی فیز 1 اور فیز 2 ہے، واہ، جو کہ پورے پاکستان سے لوگ اس میں آ رہے ہیں، اور وہ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ لے رہے ہیں اور اپنے گھر بنا رہے ہیں۔ ونڈرفل بشپ صاحب، تو یہ ونڈرفل۔ جو کالونی ہے، اس میں ہم اس کو 50 ایکڑ تک آگے انکریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو
अभी जो है वो 16 एकड़ में है। वाह 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 वाह, वंडरफुल जी बिशप साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशंस और सारे तारुफ के लिए शुक्रिया। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नाज़रीन। पिछले टॉपिक में इंतहाई खूबसूरत मुकाशफात से हमकनार हुए कि खुदा ने किस तरह से एक ईमानदार को बरकत बख्शी है, और बरकत का आगे पार्ट है दौलत। और आप अगर खुदा एक ईमानदार को बरकत देता है तो ये दौलत बरकत नहीं है, बल्कि बरकत का एक हिस्सा है, एक एलिमेंट है कि खुदा उसमें आपको ये वाला हिस्सा भी देता है। और जब आप देखते हैं कि बरकत आपके घर में आती है तो खुदा चीज़ें ख़त्म नहीं होने देता, खुदा चीज़ें बढ़ाता चला जाता है। वो चीज़ें आपके घर में सुकून का बायस बनती हैं, खुदा आपके घर में सुकून भर देता है। वो लोग मेरे साथ होंगे जिनके घर में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, जिनके घरों में ग्रॉसरी आती है और पता नहीं चलता, पैसा आता है पता नहीं चलता ऐसे, और पैसा हवा की तरह उड़ जाता है। तो याद रखिए कि आपको और मुझे खुदा के उन असूलों को सीखने की ज़रूरत है जो हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। और मैं दोबारा से जो है वो गुजारिश करूँगा कि अपने खूबसूरत खुदाम से कि दायकी से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने दायकी पे छोड़ा था कि दायकी जो है वो एक आपको बाबरकत बनाने में कितना अहम किरदार अदा करती है। और मैं गुजारिश करूंगा बिशप आसिफ जॉन गिल साहब से कि थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइए। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने ये देखा था और सुना था, बिशप आसिफ रंधावा साहब ने ये बात बयान की थी कि जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। वाह। और ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम लोग बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें तो मैथ्यू 6:38 में चढ़े बाग की 38वीं आयत में गालिबन लिखा है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आमीन। और हमारे हासिल करने का जो राज है वो देने में है। वाह 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 वाह। अगर हम लोग देंगे नहीं, बोएंगे नहीं तो काटेंगे क्या? मिसाल के तौर पर आप बैंक से ताल्लुक रखते हैं और अगर मैं अपना कोई डिपॉजिट जमा नहीं करवाता बैंक में, हाँ जी, तो चेक कैसे कैश होगा? बिल्कुल ठीक है। ATM से कैसे मैं निकलवाऊंगा? तो जरूरी है कि मैं खुदा की बादशाही की वुसअत में या खुदा की बादशाही में बोऊं। जब बात 10वें हिस्से की देने की है जी, तो इस बात का ख्याल करें कि 10वां हिस्सा इसलिए ना दिया जाए या इस नीयत से ना दिया जाए कि इसके बदले में मिलेगा, बल्कि 10वां हिस्सा जो देना है वो शुक्रगुजारी की दुआ के साथ खुदा के हुजूर जो है वो अपना रुपया पैसा या उस नेमत में से जो खुदा ने हमें दिया है उसको रिटर्न करना है। वाह। और ज़रूरी है कि हम लोग खुदा के हुजूर शुक्रगुजारियाँ पेश करते रहें, उसको देते रहें और उससे हासिल करते रहें। वंडरफुल सर। बाइबल में लिखा है कि जो कुछ तुम बोओगे वो काटोगे, और बाइबल हमें ये भी फरमाती है कि वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज फराहम करता है। बिल्कुल। सो अगर हम लोग बोना चाहते हैं तो वो हमें बीज भी फराहम करेगा, बिल्कुल। खाना चाहते हैं तो वो खाने के लिए रोटी भी देगा। आमीन तो आमीन। ये सिलसिला बाइबल में लिखा है कि जब तक आसमान और ज़मीन जो है कायम है, बोना और काटना ये मौकूफ ना होगा, बल्कि ये हमेशा चलता रहेगा, ये हमेशा कायम रहेगा। जो ज़रूरी है कि हम मसीह की कॉल के मुताबिक इस बात को अंडरस्टैंड करें कि कोई भी नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। आमीन। या तो हम दौलत की खिदमत करेंगे या खुदा की। अगर हम नहीं देते, कई लोगों को दायकी देने की आदत नहीं है, बिल्कुल। वो उनको कहा जाए तो उन्हें कहते हैं जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन जो दायकी है उसका ताल्लुक जो है वो खुदा के ज़खीरा खाना से, खुदा के घर के साथ है, हैकल के साथ है, आमीन। वहाँ पर ही उसे जमा करवानी चाहिए। अब अगर हम लोग तायत नहीं देते तो इसका मतलब है हम रुपए पैसे को ज़्यादा प्यार करते हैं बामुकाबल खुदा के। वाह। और अगर हम रुपए पैसे को ज़्यादा प्यार करते हैं तो फिर इस बात को जान लें कि हम लालची हैं। और बाइबल कहती है कि लालची जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लालची हैं तो हम बुत परस्त हैं। हमें लालच से बचना है और खुदा के हुजूर अपनी टायत, अपनी ऑफरिंग्स और जो कुछ कमिटमेंट्स हमने खुदा के साथ किए हैं उन्हें लेकर आना है बड़ी शुक्रगुजारी के साथ कि खुदा ने हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा है और जो कुछ खुदा ने हमें दिया है हम उसमें से खुदा को कुछ लुटा रहे हैं। आमीन आमीन। बिशप साहब, मतलब इसको यूं है कि जब हम खुदावन के हैं
तो फिर हम हमारा सारा कुछ खुदा का है, आमीन। हमारी पहली प्रायोरिटी खुदा है, हमने हर हाल में उसको खुश करना है। तो अगर हम इस सिचुएशन में भी हैं कि हम खुदावन के, हम जैसे हम अक्सर ऐलान भी करते हैं, इस बात का प्रोक्लेम भी करते हैं कि वी आर बिलोंग्स टू गॉड, कि हम खुदा के हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, यीशु मसीह ने सलीब मेरे लिए सही और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दिया, नाउ ही इज़ ऑन माई टॉप प्रायोरिटी, वो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर है, सारा कुछ उसके लिए है। लेकिन एक ही वक्त में हम जब बारी देने की आती है तो हम पीछे हट जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, मेरा वो फ़लाँ जो चीज़ है वो ज़्यादा अहम है मेरे खुदावंद से। इस सिचुएशन में बिशप आसफ रंधावा साहब, इस सिचुएशन में क्या वो शख्स जो खुदा को प्रायोरिटी जो फर्स्ट देनी चाहिए थी वो नहीं देता और फिर भी ये ख्याल करता है कि मैं हर वो चीज़ जो मुझे ज़रूरत है चाहिए और वो मुझे मिलेगी, क्या फरमाते हैं इस बारे में? थैंक यू सो मच सर। इसमें जो असूल है बोने का वो बहुत कारगर है। अगर देंगे ही नहीं तो वापस कैसे हमें मिलेगा? बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, तो देना जो है वो बहुत ज़रूरी है और मसीही ईमानदारों को खुशी से देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक बेजार दिल के साथ देते हैं तो यकीनन उसका रिवॉर्ड नहीं है। तो एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे एक उस्ताद साहब हैं, उन्होंने कही। उन्होंने एक कन्वेंशन में लोगों से कहा कि नया दौर है, नया नामा है, फजल का दौर है, तो हमें दया यकीन नहीं देनी चाहिए। लोगों से पूछा जी क्या आप मुतफिक हैं? सारे कहते हैं जी हाँ जी हम मुतफिक हैं, दया यकीन नहीं देनी चाहिए। सारे से ज़्यादा लोग मुतफिक और की चाहिए। अब उन्होंने ये कहा कि चूंकि अब फजल है, दया यकीन तो शरीयत में थी जी, अब फजल तो हम पर बहुत ज्यादा हुआ है, लिहाजा हमें दया यकीन से भी ज्यादा देना चाहिए। वाह, वो सारे के सारे तो यानी फजल में दया यकीन से भी ज्यादा हमें, वाह, यहाँ पर फजल बहुत हुआ। जितना बोगे उतना काटोगे। तो फजल जिस तरह अनलिमिटेड है, इसी तरह हमारा देना भी जिस कदर हम बोते हैं उस कदर ही काटें। वाह 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 वाह, आमीन 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 आमीन। और वक्त है ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा और देखते रहिए ये खूबसूरत प्रोग्राम और शो बेदारी।